Yes, sir. Okay, so today we are going to learn about basic research, how to do research, especially in non-doctrinal research, and how to write research report. As you know that this is the last semester or last year of your studies, LLM, right? And you need to prepare at the end, you need to produce a research report. So looking at that perspective, we are going to learn very practically how to write that research report, right? So at the end, there will be viva, you need to prepare a report and you need to present your research, right? So how to do that, right? From scratch, we are going to learn till your finalization of your thesis and what to do. So every possible help you are going to get, right? So, before I start this non-doctrinal research, I will like to tell you about what is doctrinal research and what is non-doctrinal research. Right? So, doctrinal research is nothing but a rule or principle. Suppose CAA acts come, right? And what are the laws under that, and how to follow that, and how to do and how to abide that, and what are the rules and regulations if you study, and whatever the loopholes that you finding out and you work on it, right? It may be a set of rules or procedural step, right? तो सीए कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अगर वो हम स्टडी करते हैं ना, तो वो डॉक्ट्रिनल रिगर रिसर्च हो जाएगा. एंड दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन, right? And doctrinal research, legal research is library based research, right? It is library based research. The things that we are going to discuss here is a non doctrinal legal research, right? So non doctrinal research deals with the socio legal aspects of your research. Socio legal aspects means whatever the society is facing or observing, and then we need to get knowledge of that particular phenomena is considered as a non-doctrinal research, right? So certain methods we need to follow, right? Certain disciplines we need to follow. There should be some problem, right? And generally this non-doctrinal legal research is to get the reform in the existing law or rules, right? It may be qualitative or quantitative. Why I said this? Because this is not a part of any question that you are going to ask from this section. I will not able to justify, right? But whatever you are going to ask, the bundle of questions I will solve in this section, right? So non-doctrinal. So before we start, let's see the agenda. What we are going to learn exactly, right? So these are the 30 minutes, 2.5 hours agenda for us. So first of all, we'll learn what is research, right? And why to do research, right? Why we are having at a final level that research, right? So what are the objectives of research, right? And to do that research, we have to follow certain rules and regulations. And for that, how to identify the problem and how to frame the problem statement, right? That detail we are going to learn with example, right? And how to do literature review, right? Which is very important. How to do literature review, that we are going to learn. And many of you are confused with the samples, right? So how to take samples, how to collect the data, what type of data are there, how to collect the data, how to analyze the data, right? That is very important. Otherwise, if you have collected good number of data, but if you are unable to analyze properly and write it in a right perspective, right? And find out the whatever the findings and conclusion, then you are not going to get anything, right? And last, this will be visible at the end. This is output, right? So how to write a report, matlab how to write a research report, that we are going to learn. And at the end or in between also, we can have a question answer session. So this is the
roadmap for today's 2.5 hour session. It may take long if you are very interested and if you are participating, and it could be 1.5 or 2 hours if you are not participating, right? So this time period is depends on your zeal, your enthusiasm, right? So this is the today's agenda, and definitely I want to give you surety that after learning this, and let me confess that this is the first time I am going to address a students of law, that too my near and dear subject, that is research methodology, right? So this is first. Can somebody mute the person? Hello. Okay. So this is first time I am addressing the master student. Otherwise, under my guidance, 50 MPhil student and 10 PhD student have passed it out, right? And I will share all my experience so that easily you can understand what is research and how to do this, right? And at the end of your session, how to come out with the report, right? So till that area we are going to touch, right? So we are officially starting. So first question is, what is research, right? What is research? The question, basic question, every time in all the workshop I'm going to ask, or I'm generally asking, right? सबको ये मैं पूछता हूँ कि रिसर्च है क्या, क्योंकि अभी क्यों आ रहा है रिसर्च, मतलब करना क्या है? अभी बुक्स तो दी है, लॉ तो दिया है, उसकी प्रोसीडिंग सब वो तो अवेलेबल है, राइट? बट why to learn this research, right? As a law student, अभी कुछ करना नहीं है, वो लॉ में बताया गया है तो देख लेंगे क्या है क्या नहीं, और उसके मुताबिक से क्या करेंगे, हम उसको फॉलो करेंगे, उसका डिफेंड करेंगे, राइट? राइट, तो वही है, तो रिसर्च क्यों करना, दैट तो बिफोर दैट, व्हाट इज रिसर्च? तो रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक वे, दैट दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिस्टमैटिक वे टू गेन ए न्यू नॉलेज। कुछ नया नॉलेज के लिए हमको नया नॉलेज पाने के लिए कुछ सिस्टम फॉलो करते हैं, सिस्टमेटिक वे पे जाते हैं ना, तो उसको रिसर्च कहते हैं। और लेट मी टेल यू दैट दिस पीपीटी विल बी गिवन टू यू, राइट? तो नो नीड टू राइट एनी नोट्स, बट यू एज एंड व्हेन आई एम आस्किंग यू पार्टिसिपेट इट, ये पीपीटी पूरा आपको मिल जाएगी। Sir, I'm sorry to interrupt, but PPT is not visible on the screen. Oh, let me. Now? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Now? Now? Not yet, sir. No, sir. No, sir. I request the student ki please maintain the decorum because it is humble request. Sir, now visible. Okay. Sir, now visible. जो भी Okay, बीच में डिस्टर्ब कर रहा है उसको आप प्लीज उसको आप निकाल सकते हैं सेशन से, वापस वो जुड़ेगा फिर, बिकॉज इफ यू आर म्यूटिंग एवरीवन, सर का भी म्यूट हो जाता है क्योंकि। ओके, तो फिर से मैं बता देता हूँ कि डॉक्ट्रिनल रिसर्च एंड नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च, दिस वी आर नॉट गोइंग टू टच, राइट? एंड एजेंडा जो जैसे मैं बताया, व्हाट इज रिसर्च, व्हाई वी डू रिसर्च, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, लिटरेचर रिव्यू कैसे करें, सैंपल कैसे सिलेक्ट करें और कैसे ले, डेटा कैसे कलेक्ट करें और डेटा का एनालिसिस करके रिपोर्ट कैसे बनाए, वो है, और लास्ट में हमें क्वेश्चन आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यह था कि व्हाट इज रिसर्च, रिसर्च क्या है? तो रिसर्च है इज अ सिस्टमैटिक वे to gain a new knowledge. New knowledge may be out of your curiosity or something that you have the problem,
right? For that you need or you require a new knowledge. This is gaining system, right, or gaining process, and research is a process, right, is a process, right? And another definition of research is systematic investigation. So all will what all will do, हम सब क्या करेंगे, systematic investigation करेंगे, और available नहीं होगा कुछ, हमको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा into a study material. It may be any phenomena, any incidents, any behavior, any kind of perceptions. Okay, so this material can be anything, and sources in order to establish facts. और बाद में ये करके हम क्या करेंगे, फाइंडिंग करेंगे, वो फैक्ट होगा कि भाई ये जो लॉ है इसमें कितना वो पालन हुआ है कि नहीं हुआ है, कैसे जा रहा है, अच्छा है कि नहीं है, राइट? दैट थिंग, दैट फैक्ट्स we need to identify or we need to find the facts, right, and reach at a new conclusion. ये कुछ नया करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रिसर्च. इसलिए हम रिसर्च करते हैं. और लेट मी टेल यू, जो आप बुक्स पढ़ रहे हो ना, जो बुक्स पढ़ रहे हो, जो भी मैगजीन्स हैं, राइट, इट इज नॉट योर नॉलेज, और ये आपका नॉलेज नहीं है, वो तो उधारी का नॉलेज है. कोई भी बुक्स आप पढ़ रहे हो तो वो नॉलेज आपका है नहीं, वो बुक देख के अगर आप कोई केस लड़ रहे हो तो वो केस मतलब आपका उधारी का नॉलेज आप यूज कर रहे हो. बट इफ यू यूज रिसर्च फॉर दैट, so that is your ownership. Research gives you ownership. आप कह सकते हो कि ये perfectly ये है, right? So it is a fact finding, and to reach a new conclusion we need to do a research. Now second question that we are coming, right? Why to research? क्यों इतना सारा झमेला है रिसर्च के लिए, राइट? सब क्यों रिसर्च के पीछे पड़े हैं? फाइनल स्टेज पे आपको क्यों रिसर्च और रिपोर्ट लिखना है और वाइवा देना है और इतना सारा रिसर्च करना है? वाई सर, मतलब क्यों ये सब ये रिसर्च का हुआ है, राइट? तो देयर आर सर्टेन रीजंस, राइट? वाई टू रिसर्च? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे मन में, राइट? तो ये मैं ना एक्चुअली आपको पूछना चाहता हूं कि क्यों हम रिसर्च के पीछे पड़े हैं. देखो, आपका फाइनल ईयर में रिसर्च रिपोर्ट अगर अच्छी तरह से नहीं होगा तो आपका कम मार्क्स आना बहुत चांसेस है, राइट? और सब जगह देखो, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये डिपार्टमेंट्स भी होता है हर कोई कंपनी में, और हर कोई जो अभी है ना रिसर्च कर रहे हैं. स्टॉक मार्केट में जाओ तो रिसर्च बेस्ड स्टॉक मार्केट हो गया है, राइट? बिजनेस में रिसर्च होता है, सब जगह रिसर्च है. तो क्यों करना है ये? वाई वी नीड टू रिसर्च, राइट? तो ये क्वेश्चंस आप वन बाय वन बोलेंगे और मैं यहाँ लिखूंगा. क्यों रिसर्च करते हैं हम? चलो, इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया है रिसर्च में, राइट? कोई भी एक बोलेगा, रिसर्च क्यों करते हैं हम? वाई रिसर्च इज सो इम्पोर्टेंट, और रिसर्च क्यों करना चाहिए? सर, एक्चुअल कंडीशन जानने के लिए, टू नो द फैक्ट्स, right? yes, To yes. know the facts, right? हम किसी के परसेप्शन पे जाए या दो तीन लोगों के बोलने से जाए ना, तो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस, राइट? हमको फैक्ट की तरफ जाना पड़ेगा, और फैक्ट जो है वो नॉलेज होता है, राइट? तो वो गेन करने के लिए, राइट? तो टू नो द फैक्ट्स के लिए हम रिसर्च करते हैं कि एक्चुअली क्या है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मास्क लगाना ऐसा रूल्स है, राइट? गवर्नमेंट में भी ऐसा किया है, तो अभी नहीं लगा रहे हैं, कितने लगा रहे हैं, तो वो हम ऑब्जर्वेशन करेंगे या कहीं जाके पूछेंगे, देखेंगे, तो हमको फैक्ट्स का पता चलेगा, राइट? सो टू नो द फैक्ट्स. सेकंड, हम रिसर्च क्यों रिसर्च करना है? दूसरा, to know the things, from start to bottom. ओके, वो फैक्ट्स में आ गया. नो द थिंग्स वो फैक्ट्स में आ गया. और कोई? Betterment of work. यस, बेटरमेंट ऑफ वर्क. ओके, मतलब जो यहाँ फैक्ट जो देता है ना, जो भी फैक्ट्स हमने क्रिएट किया है, तो एक्चुअली फैक्ट्स जान के क्या करेंगे, हम अच्छी तरह से काम कर पाएंगे, राइट? हम अच्छी तरह से काम कर पाएंगे. फॉर एग्जांपल, जो ट्रैफिक रूल्स है, इसकी कंडीशन इंडिया में, गुजरात में या आनंद में कैसी है,
राइट। अगर हम जानेंगे तो उसके बेस पर हम अपना केस लड़ सकते हैं, उसके बेस पर हम अपना पॉइंट रख सकते हैं, और उसके बेस पर हमारा जो काम है ना वो आगे कर सकते हैं, और काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रैफिक का बहुत झमेला है या ट्रैफिक रूल्स का फॉलो नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है, तो उसका रीजन हमको पता चल गया, तो उसका हम रेमेडी करेंगे, राइट। तो हमारा जो वर्क होगा वो बेटरमेंट ऑफ वर्क, मतलब जितना अगर अच्छा वर्क कर पाएंगे, बिकॉज वी नो द फैक्ट्स। कल शेयर मार्केट में क्या होने वाला है, अगर हमको फैक्ट्स पता चल जाए तो हम अगले दिन नेक्स्ट डे क्या करेंगे, बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। एनी अदर, व्हाई वी डू रिसर्च, एनी अदर ओपिनियन? क्योंकि outcome of problems, outcome of problems, rather solutions of the problem, right? कोई भी प्रॉब्लम्स होता है उसका सॉल्यूशन लाने के लिए हम रिसर्च करते हैं, राइट। देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स, एक पर्सनल लेवल पे भी प्रॉब्लम है, राइट। अभी ये कृषि बिल आया, फॉर एग्जांपल कृषि बिल आया, क्यों आया? क्योंकि जो 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 फार्मर है उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी, उनको मंडी पे जाना पड़ता था, और मंडी वालों का अलग स्टैटिस्टिक्स होता था, अलग सब रूल्स होते थे। तो जो 5 रुपये में बिकने वाली चीज, 5 रुपए में बिकने वाली चीज उसको बाहर मार्केट में 50 में बिकती थी, वो 5 रुपए में बेचना पड़ता था। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आई, तो उसका सॉल्यूशन के लिए हमारा कृषि बिल 2020 आ गया, राइट। तो इट्स राइट करेक्ट आंसर कि सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम के लिए हम करते हैं। और क्या है, और कोई बोलेगा? Sir, to upgrade the implementation of the already existing facts. Upgrade the Implementation. Upgrade the knowledge, right? To upgrade the knowledge, अपना knowledge upgrade करने के लिए भी हो सकता है। Any other view? Benefit and loss. Pardon? Benefits, to get benefits. enforcement of law, enforcement of law, लॉ में ये एनफोर्समेंट होता है, राइट। एनफोर्समेंट ऑफ लॉ कैसे होता है, वो सब करके करते हैं। कोई एक स्पेशल और बताएगा रिसर्च का, एकदम फनी वाला? To know the outcome, results of the existing facts. वो तो आ गया ऊपर। Yeah. एक मस्त है, देखो मैं लिखता हूँ। हाँ बोलो। असरकारक करने के लिए हमारे निश्चित विषय को अगर इफेक्टिवनेस लाने, टू गेट द इफेक्टिवनेस, राइट। हमारे काम में इफेक्टिवनेस आए उस लिए, ओके। और लास्ट में मैं लिख देता हूं, आपको नहीं, मैं टू गेट द डिग्री, गेट द डिग्री। सब डिग्री यहाँ मिलेगी ना, रिसर्च नहीं करेगा तो डिग्री नहीं मिलेगी, ये कंपल्सन रख दिया है। तो कोई डिग्री लेने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, और एडवोकेट, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बनने के लिए ये रखा है हर्डल, तो भी रिसर्च करना पड़ेगा। तो ये सब एक्चुअली है ना, ये अपनी लाइफ को बेटर और बेटर बनाने के लिए, अपने माइंड को क्लैरिटी से क्लैरिटी लाने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने के लिए, और अपना नॉलेज अपग्रेड करने के लिए, और अपना जहां फील्ड है वहां हमारी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। और रिसर्च जिसका अच्छा हो, एनालिसिस जिसका अच्छा हो, वो आदमी सक्सेसफुल बन सकता है लाइफ में। पर रिसर्च करना ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे ये लगा, मुझे वो लगा, मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं, अपनी कोई नहीं चलेगी, अपनी कोई नहीं चलेगी। जहां तक बने वो सिस्टमैटिक वे पे होगा, वो सिस्टमैटिक वे सीखना है ना, बहुत जरूरी है। तो आप कितनी भी रिसर्च मेथोडोलॉजी की बुक पढ़ लो, पर आप अंदर का सिस्टमैटिक वे नहीं जानोगे ना, तब तक आप नहीं जानोगे, राइट। तो यहां जो मॉडस ऑपरेंडी जो मैं सिखाने जा रहा हूं, राइट, नेक्स्ट पॉइंट पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, राइट। तो उसके पहले मैं एक क्वेश्चन सबको पूछना चाहता हूं, और आपको है ना उसका जवाब देना है, राइट। चलो, स्वीट्स का कितनी टाइप्स होती है? स्वीट्स के टाइप्स बोलो, अलग अलग स्वीट्स का मतलब बोलो। चलो पहला पेड़ा मैं बोलता हूँ ना, पेड़े होते हैं, पेड़े, राइट। અને ગુજરાતીમાં પેડા કહીએ, રાઈટ। और कितने होते हैं? हाँ,
बर्फी। सर गुलाब जामुन बहुत सारी। ओके, काजू कतरी मेरी फेवरेट। हाँ, वाइट पेड़ा मैंगो चॉकलेट बर्फी गाजर का हलवा चॉकलेट बर्फी चॉकलेट बर्फी, सर गाजर का हलवा, वेरी गुड, जलेबी, जलेबी और काला जामुन, काला जामुन। लेडीज ज्यादा बोल रही है। हाँ? कोपरा पाक, कोपरा पाक, यस। मैसूर, मैसूर पाक, रसगुल्लो रसमलाई रसगुल्लो रसगुल्ला, रसगुल्ला, राइट। चलो, ये है ना सब, काजू कतरी, गुलाब जामुन, चॉकलेट बर्फी। तो ये मान लेना है कि ये सब स्वीट्स है, राइट। इसमें कॉमन चीज क्या है सर? अभी आवाज नहीं, अपना माइक म्यूट कर शुगर दीजिए। शुगर अपना अमित कुमार जी का माइक चालू है, प्लीज म्यूट कर दो उनको। सब में एक कॉमन है, वो है शुगर और स्वीटनेस। स्वीटनेस है, राइट। कोई भी मिठाई खाओ ना, कोई भी मिठाई खाओ, इसमें ना मीठा लगता है, मीठा लगा मतलब मिठाई होती है, ऐसा, राइट। तो हमारा जो ये मेथोडोलॉजी जो भी होगा ना, वो आइदर काजू कतरी होगी या गुलाब जामुन होगा कि चॉकलेट बर्फी, कि वो मैडम बोली वो कोपरा पाक होगा या जलेबी होगी, कुछ भी होगा। लेकिन मैं जो बोलने जा रहा हूं ना, वो एसेंस है, वो है स्वीट्स। आपको स्वीट्स एक पता चल गया है कि मीठा ऐसा लगता है, तो वो मीठा काजू में डालो तो काजू कतरी हो जाती है, और मावा में डालो तो पेड़ा हो जाता है, राइट। और चने में डालो तो ये क्या बोलते हैं उसको, जलेबी हो जाती है, राइट। और मिक्स करके डालो तो कुछ और हो जाता है। तो ये जो मेथोडोलॉजी है ना, ये स्वीट्स वाली मेथोडोलॉजी है। मतलब आपको मुझे तो तीन ग्रुप बताए गए हैं, राइट। एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक क्रिमिनल है और बिजनेस वाला है, राइट। तीन ग्रुप है। तो कोई भी एग्जांपल आए ना, तो आपको आपका रेप्लिकेट करना है। मतलब आप काजू कतरी के आप फेवरेट है ना, तो काजू कतरी का आपको याद करना है कि काजू कतरी कैसी होती है। मैं चाहे गुलाब जामुन का वखाण करूं, राइट, भले ही काला रहे, राइट, लेकिन आप अगर जहां जहां होता है ना, तो आपको काजू कतरी और वो सब सोचना है, राइट। तो ये स्वीटनेस है ना, एक्चुअली आपको एंजॉय करनी है, राइट। तो पहला जो पॉइंट है, अभी अभी तो एकदम बेसिक क्लियर किया है कि रिसर्च क्या है। तो फाइंडिंग आउट समथिंग न्यू, मतलब सिस्टमेटिक वे पे, और रिसर्च करेंगे तो क्या क्या होगा, क्यों हम रिसर्च कर रहे हैं, राइट। वो सब देख लिया, वो तो बेसिक था, थियरी था। कोई मतलब वो अगर किसी को पता है नहीं है तो ठीक है, लेकिन रिसर्च कैसे करें, क्यों आगे आए, कैसे करें, राइट। तो हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, राइट। अभी मैंने आप सबको तीन तीन कोई भी न्यूज़पेपर के जो टॉपिक है या टाइटल है, वो आपको बोला था कि आपको लेना है, राइट। तो इसके लिए है ना, मैं रैंडमाइज करता हूं, राइट। रैंडमाइज करता हूं तो उसको बोलना पड़ेगा, राइट। कौन बोलेगा तीन, वो मैं यहां बोलूंगा, वही उनको ही बोलना है, क्योंकि मैंने बोला ना रैंडमाइज करना पड़ता है। तो केतन ए पटेल, केतन ए पटेल, जिसका भी नाम हो, वो तीन टाइटल मुझे बताए, तीन टाइटल मुझे बताए उन्होंने क्या पढ़ा। मतलब रैंडमाइज है, मुझे पता नहीं है केतन पटेल कौन है। केतन भाई बोलो। गुड मॉर्निंग केतन भाई। चलो, केतन भाई सो रहे शायद, राइट। नीमा वाघेला, नीमा वाघेला, अपना माइक अनम्यूट करो और बोलो तीन टॉपिक कौन कौन से थे। सबको म्यूट कर दिया क्या? हेलो। No, sir. No, sir. हाँ, I think she is not opening her like mic. So you just okay, request other name if it okay. is possible. other name. चलो, स्मिथ भट्ट, स्मिथ भट्ट। जो या आगे आप तीन टॉपिक नहीं बोलोगे तो मैं आगे ही नहीं जाऊंगा। स्मिथ भट्ट ने क्या? यस यस यस, स्मिथ बोलो।
ત્રણ Yes, ટોપિક sir. બોલો. હા બોલો સ્મિત ભટ્ટ. પહેલો ટોપિક જે કાલે રાષ્ટ્રપતિ યુએસ માં જે ધમાલ થઈ સાંસદ ની Okay. અંદર ફર્સ્ટ Okay. ટોપિક. ઓકે મતલબ Second. પ્રેસિડેન્ટ હાઉસ. Yes, प्रेसिडेंट्स हाउस. पार्लियामेंट. ओके Yeah. ओके डन. Yeah. उस पे अटैक हुआ वो आपने पढ़ा है राइट. Yeah, ओके yeah, सेकंड yeah. सेकंड सेकंड. Second, the double decker train in India launch. नहीं वो आपको लीगली कहाँ आ गया. लीगल एस्पेक्ट थोड़ा आना चाहिए ना. ओके सर, ओके. लीगल में फिर सर वैसे भी कृषि बिल ले सकते हैं अभी. नहीं वो कृषि बिल तो मुझे पता है राइट. कृषि बिल तो मुझे पता है लेकिन मुझे तो ये चाहिए कि आपने आजकल क्या पढ़ा क्योंकि ना कृषि बिल तो मैंने सोच के रखा था बहुत पहले सोच के रखा था कि मैं रिसर्च करूंगा इस पे लेकिन ये अभी हम प्रेजेंट में जीते हैं प्रेजेंट में. यस सर. चलो एक टॉपिक देने के लिए थैंक यू. विराट पटेल. જ્યાં સુધી જવાબ નહીં આવે ત્યાં સુધી વેઇટ કરીશ કારણ કે this is very practical right. That's why I said very practical. વિરાટ પટેલ. ડેમોક્રેટ અને રિપબ્લિકન સાંસદો વચ્ચે મારામારીની નોબત આવી ગઈ. ઓકે this પાર્લામેન્ટ વાળું આવ્યું. બીજું લાવો ને આ તો આવી ગયું. ચલો આવી ગયું. હેલો. હા બોલો. હા સર આપણે જે ઇન્ડિયાનું જે નવું પાર્લામેન્ટ બને છે એના પર સુપ્રીમ કોર્ટે જે બેન લગાવ્યો હતો એ બી મુદ્દો લઈ શકીએ. મુદ્દો કાલના પેપરમાં છે આજના પેપરમાં છે. હા સર. ઓકે શું છે ટાઇટલ ખાલી ટાઇટલ કહો. એટલે સુપ્રીમ કોર્ટે કીધું હતું કે હાલ કોવિડ ના લીધે થઈને પાર્લામેન્ટમાં આટલો નવા નિર્માણમાં 2000 કરોડનો ખર્ચો થવાનો છે જે વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ છે જે હાલ ના કરવો જોઈએ. પછી સુપ્રીમ કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો કે કોઈ બી ગવર્મેન્ટ હોય એને કેવી રીતે ચલાવવી શું કરવું એના પર સુપ્રીમ કોર્ટ નિર્ણય ના લઈ શકે એ સરકાર કરી શકે. ઓકે ડન. કોવિડ 2000 करोड़ एक्सपेंस and Supreme Court says no. Wait and watch. Any third कोई भी बोलना चाहेगा. और आपने तो बहुत अच्छा लिखा है मतलब व्हाट्सएप में देखता हूँ ना. यस સર કર્જનમાં લેન્ડ ગ્રેબિંગ અંગે પ્રથમ ફરિયાદ થશે. लैंड ग्रैबिंग. અત્યારે ओके चलो लैंड ग्रैबिंग आ गया. राइट. ओके डन. अभी सब म्यूट कर दो. बोल दो फोर्थ वाला बोल दो. चलो बोलो. धर्म का अधिकार जीवन का अधिकार से बड़ा नहीं है. मद्रास हाई कोर्ट जजमेंट. धर्म का अधिकार जीवन का अधिकार से बड़ा नहीं हो सकता. ओके चलो अभी सब म्यूट कर दो. राइट. चलो रैंडमली मैंने ये पिक किया राइट. और मतलब रैंडमली पिक किया. अभी क्या करेंगे ये चार में से हम क्या करते हैं कि मान लो कि ये आपका ये आपने देखा राइट कि पार्लियामेंट हाउस जो यूएस का है उस पर अटैक हुआ राइट. ये न्यूज आई तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है राइट. कोविड आया और ये 2000 करोड़ का नया बिल्ड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया या कुछ भी नहीं किया कि बोलो कि नई एक्सपेंस करना वो न्यूज देखा राइट. लैंड ग्रैबिंग का केस होगा तो लैंड ग्रैबिंग इज इन अ लाइमलाइट इन यस्टरडेज और टुडेज न्यूज़पेपर. एंड लास्ट में जो धर्म अधिकार एंड जीवन का अधिकार ओके तो जीवन का अधिकार बहुत ज्यादा है धर्म का अधिकार ऐसा कुछ आया राइट. अभी ये न्यूज आइटम आया राइट. सो कैन वी आइडेंटिफाई राइट. आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा. मैं शुगर वाला बोलता हूँ. आप बर्फी पे मत जाना. आप गुलाब जामुन के कलर पे मत जाना. आप वो स्वीटनेस है ना वहां देखना राइट. तो प्रेसिडेंट्स हाउस पे ये अटैक हुआ
कोविड का ये हुआ, लैंड ग्रैबिंग हुआ, ये हुआ, तो कैन वी प्रिपेयर, ये चाह तो एकदम रैंडम किया, राइट? आपको भी पता है, मुझे कोई किसी का लिस्ट में पता नहीं है और रैंडम किया है, तो कैन वी हैव ए रिसर्च प्रॉब्लम, कैन वी प्रिपेयर आवर डिसर्टेशन और आवर रिपोर्ट ऑन एनी ऑफ दिस 4 टॉपिक, राइट? और आपने भी दिया है, राइट? तो चलो मैं बताता हूं, राइट? तो ये एक घटना होगी, राइट? ये घटना कौन सी है कि पार्लियामेंट, पहला ले लेते हैं, चलो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राइट? तो पार्लियामेंट हाउस पे कई अटैक होते हैं, राइट? अटैक होगा, राइट? तो ये अटैक ये यूएस के पार्लियामेंट में हुआ, राइट? और पार्लियामेंट में अटैक मतलब लॉ सिस्टम का सबसे बड़ा अटैक, क्योंकि वहां लॉ हम मतलब पास करते हैं और लॉ का मतलब अनुमोदन देते हैं, वैसे ही उनका मतलब अटैक करना तो लोकशाही या जो भी अपना देश का है वो जाता है, राइट? सो कैन वी हैव ए रिसर्च प्रॉब्लम और अपना जो डिसर्टेशन है ना इस पे हो सकता है? तो आई एम सेइंग यस। आपने पहला बोला, चलो मैं अगर होता और मैंने ये न्यूज देखा, राइट? तो मैं क्या करता कि पार्लियामेंट पे अटैक करना, दिस इज नॉट ए फर्स्ट एक्टिविटी, राइट? पहली बार ये घटना नहीं हुई है, पास में बहुत सारी घटना, इंडिया में भी ये पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, राइट? और इसका केस पे अभी भी चल रहा है और उसका जो कल्प्रिट है वो पाकिस्तान में अभी भी जिंदा है, राइट? तो कैन वी, आउट ऑफ माई क्यूरियोसिटी, मतलब मुझे अभी पता नहीं है, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैं तो कॉमर्स का हूं ना, मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन कैन आई टेक दिस एज ए माई रिसर्च टॉपिक फॉर द प्रिपरेशन ऑफ माई रिपोर्ट? तो यस। तो मैं ये ऐसा करूंगा कि प्रेसिडेंट हाउस पे और सॉरी पार्लियामेंट पे कितने अटैक्स कहां कितनी कंट्री में हुए, राइट? दैट इज फर्स्ट माय क्वेश्चन। आई डोंट नो, बिकॉज ये आर्टिकल मुझे है ना सोचने पे मजबूर करता है कि पार्लियामेंट पे कितने अटैक कहां कितने देशों में हुए, कौन से देश में ज्यादा हुआ, राइट? तो इससे पता चलता है कि लॉ की परिस्थिति कहां वीक है, राइट? सेकंड थिंग मैं सोचूंगा कि भाई पार्लियामेंट पे जो ये अटैक हुआ तो उसके रीजंस क्या है, राइट? इंडिया में रीजंस क्या था? अलग जो अटैक्स हुए, कहीं भी पाकिस्तान में भी हुए, इंडिया में भी हुए, अभी यूएस में 200 साल पहले हुआ था, अभी हुआ है, राइट? सो दैट स्ट्राइक्स मी कि व्हाट आर द रीजंस, क्या है रीजंस? ये बेसिक हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि रीजंस क्या है, क्योंकि मुझे रीजंस इसलिए जानना है कि ताकि वो रेमेडी हो जाए, राइट? ट्रम्प का जो भी है वो रेमेडी हो जाए ना, तो वो ऐसे अटैक ना हो। माय प्रॉब्लम इज कि अटैक ऐसा नहीं होना चाहिए, सब कंट्री में जो पार्लियामेंट हाउस पे अटैक नहीं होना चाहिए। तो आई विल फाइंड इट आउट कि व्हाई देयर आर सम, मतलब व्हाई दिस इज हैपनिंग, ओके? यूएस में क्यों हुआ, राइट? इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं, राइट? इंडिया में हुआ, उसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं? एंड आफ्टर स्टडिंग 5, 6, 7 countries attack, I will come out with the idea what are the major reasons for attacking on parliament, right? This could be the one of the objective of my research, right? Next thing is parliament पे attack हुआ, right? parliament पे attack हुआ तो इसके बाद impact क्या आ रही है, right? impact on maybe economy, impact on परसेप्शन ऑफ पीपल, लोग क्या सोच रहे हैं, अटैक हुआ लोग क्या सोच रहे हैं, राइट? और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस क्या है, वो हैंडल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, राइट? और हैंडल किया तो कैसे किया? These are my questions. I don't know, actually don't know. और ये मैंने है ना मतलब न्यूज में पढ़ा था, अभी मुझे नहीं पता है। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई कैन टेक दैट अटैक ऑन पार्लियामेंट, राइट? एंड इट्स इम्पैक्ट, राइट? तो वो मैं टॉपिक ले सकता हूं। आई होप दैट यू आर एग्रीइंग विद दिस, राइट? और एक बात और अलग रिसर्च भी कर सकता हूं। कैसे? पार्लियामेंट पे अटैक हुआ यूएस में, अभी तो हमारा और यूएस का अलग अलग है, हम यूएस में नहीं है। अगर वही अटैक इंडिया में होता है ना तो मैं क्या करता? और यूएस का कोई पार्टी है ना फॉर एग्जांपल, तो अटैक के बाद व्हाट आर द बेसिक परसेप्शंस
ऑफ कॉमन पीपल ऑन द लॉ, राइट। ऐसी घटना के बाद क्या परसेप्शंस है उनका कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक है कि नहीं है, ये सही है कि नहीं है, तो उसका परसेप्टिव स्टडीज मैं कर सकता हूं, क्योंकि ये मेजर आउटब्रेक है, मेजर इंसिडेंट्स है, राइट। तो उसके हिसाब से मैं क्या कर सकता हूं, मेरा स्टडीज आराम से कर सकता हूं। मैं अपना वो जो टाइटल लिखूंगा ना ऐसे, तो अटैक ऑन पार्लियामेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द परसेप्शन ऑफ कॉमन पीपल। तो पार्लियामेंट पे अटैक और लॉ क्या बोलता है, क्या क्या है, और उसके सिंपल इफेक्ट क्या है ऑन कॉमन पीपल्स परसेप्शंस क्या है, मैं परसेप्टिव स्टडीज कर सकता हूं। और उसके लिए क्वेश्चनर्स जो बनाना है, जैसे करना है, मैं कर सकता हूं। इट मींस दैट दिस इज, मैं एक टॉपिक निकाल सकता हूं, राइट। नेक्स्ट, सेकंड आपने बोला कि कोविड होने के लिए, प्लीज म्यूट कर दीजिए अपना। थैंक यू। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2000 करोड़ का खर्चा आया था, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, अरे बोल दिया नहीं करना है, राइट। तो ये एक घटना हुई कि भाई जो भी आप खर्चा कर रहे हो वो गवर्नमेंट को उसको कंट्रोल किया किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। तो मेरा ये मेरा स्टडी हो सकता है कि कौन से मैटर में सुप्रीम कोर्ट, राइट, कौन से मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है इंडिया में, जो गवर्नमेंट के ऑपोजिट जाके गवर्नमेंट ने जो फिक्स किया है उसको नकारा है, कितनी बार उन्होंने वो नकारा है, राइट। अभी 2000 करोड़, बहुत आवाज आ रही है, अभी 2000 करोड़ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, वो प्रॉब्लम, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये नहीं हो सकता, राइट। तो कौन से ऐसे सिचुएशंस आती है, लीगल एस्पेक्ट्स देखो, कौन सी वो सिचुएशंस है वहां जहां सुप्रीम कोर्ट रोक लगा रही है किसी भी ऐसा बिल्डिंग इंस्ट्रक्शंस करने के लिए, और कहां पास किया है, कौन से स्टेट में, मतलब कौन से मतलब सिचुएशंस में उन्होंने पास किया है, कौन सी सिचुएशन में उसने रिस्ट्रिक्ट किया है, और कहां तक वो रिस्ट्रिक्शन चल रहे हैं, राइट। दैट कुड बी माय रिसर्च क्वेश्चन, कि वो रिस्ट्रिक्शंस टेम्पररी है या परमानेंट है, या बंधेगी नहीं बंधेगी, और उसका रूल्स रेगुलेशंस क्या है, वो जान के वेदर सुप्रीम कोर्ट इज डूइंग गुड और नॉट, दैट कुड बी माय स्टडी, राइट। लैंड ग्रैबिंग, गुजरात में ये लैंड ग्रैबिंग का लॉ पास हुआ, राइट। तो लैंड ग्रैबिंग का लॉ वो पास हुआ है, तो लोग क्या समझते हैं, राइट, व्हाट आर द परसेप्शन ऑफ पीपल अबाउट दिस लैंड ग्रैबिंग, राइट। तो उसको अलग अलग तरीके से, यही लैंड ग्रैबिंग में से ही मैं 5 ऐसे रिसर्च टॉपिक जो आपका एलएलएम में काम आ सके वो मैं कर सकता हूं। कैसे, जो लैंड ग्रैबिंग है, लैंड ग्रैबिंग का जो अवेयरनेस कैसा है, अवेयरनेस, उसके लिए मैं वो एक स्टडी कर सकता हूं कि अवेयरनेस अबाउट लैंड ग्रैबिंग एक्ट amongst people of Anand, people of Gujarat, people of Kheda district, right? और मैं land awareness of land grabbing among the rural people or among the urban people, awareness of land grabbing, a comparative study of Anand district and जामनगर डिस्ट्रिक्ट, राइट, ये कर सकता हूं। तो ये एक ही हुआ, राइट। सेकंड थिंग, ये लैंड ग्रैबिंग एक्ट है, तो लैंड ग्रैबिंग एक्ट आने से हाउ पीपल आर फीलिंग, राइट, अवेयरनेस तो आ गई, अभी पीपल कैसे फील कर रहे हैं कि अबाउट लैंड ग्रैबिंग एक्ट। तो इसके लिए जिसकी लैंड ऑलरेडी ग्रैब हो गई है और मतलब वो केसेस चल रहे हैं, व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट दिस, राइट, कि ये आने से उनका क्या मनोबल बढ़ा है, उसका इफेक्ट हो रहा है, राइट, वो कर सकते हैं, राइट, वो कर सकते हैं। तो उसके लिए जिसकी जमीन गई है या कोई किसकी जमीन ले ली है, दैट कुड बी योर रिस्पोंडेंट,
और आप एक्चुअली मेजर करो कि ये लैंड ग्रैबिंग एक्ट विल बी इफेक्टिव और नॉट, वो राइट पर्सपेक्टिव में गुजरात में आया है कि नहीं आया है, आप चेक कर सकते हो, राइट। तो ये लैंड ग्रैबिंग और नेक्स्ट टॉपिक आप ऐसे भी कर सकते हो कि लैंड ग्रैबिंग के कितने कितने केसेस हुए हैं, राइट, अक्रॉस इंडिया, गुजरात एंड अदर स्टेट में लैंड ग्रैबिंग का कितना एक्ट हुआ है, इतनी कितनी प्राइस है, किसमें लैंड वापस मिली है, कहाँ नहीं मिली है, कौन से सिचुएशन में लैंड ग्रैब करते हैं, राइट। कोई खाली जगह देखी कोई घुस जाएगा, कोई बंजर जमीन देखी वो घुस जाएगा, कोई किसी को हटा के घुस जाएगा, किसी को मतलब पैसा नहीं दिया तो उसको निकाल के घुस जाएगा, राइट। ऐसे ऐसे रीजंस हैं। तो वो कौन से रीजन से लैंड ग्रैब हुई है और कितनी अक्रॉस द गुजरात, अक्रॉस इंडिया कितनी लैंड ग्रैब हुई है, राइट। वो सेकेंडरी डेटाबेस आप अपना रिपोर्ट बना सकते हैं, क्योंकि वो जानना बहुत जरूरी है कि लैंड ग्रैबिंग एक्ट आने के पीछे रीजंस क्या है, क्या क्या हुआ है अब तक, राइट, और क्यों ये लॉ आया है, और वेदर दिस लॉ विल फुलफिल ऑल इट्स ऑब्जेक्टिव्स और नॉट। तो उसके लिए प्रोविजन जो है उसका आपके हिस्ट्री से वो मैच करो कि ये प्रॉब्लम था, अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक ही लैंड ग्रैबिंग एक्ट से मैंने कितने निकाले, 3 टॉपिक निकाले, और 3 आराम से ये हो सकता है, राइट, लैंड ग्रैबिंग वाला, राइट। ये धर्म अधिकार और जीवन अधिकार, राइट। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि परसेप्शंस सबका मान सकते हैं कि ये कोर्ट ने ये दिया है कि जीवन का अधिकार बड़ा है धर्म से अधिकार, राइट। तो हाउ पीपल आर फीलिंग अबाउट धर्म वर्सेस जीवन, राइट। तो यू कैन आस्क डिफरेंट कास्ट एंड क्रीड्स पीपल, राइट। अलग अलग हिंदू में जाओ, मुस्लिम में जाओ, अलग कम्युनिटी में क्रिश्चियन में जाओ और पूछो कि वेदर व्हाट इज राइट व्हाट इज नॉट, राइट। तो उसका एक स्केल बना के ये अधिकार को आप कंफर्म करोगे कि जो भी अधिकार के लिए जो हाई कोर्ट ने बोला है वो सही मायने में है कि नहीं है, पीपल आर बिलीविंग और नॉट, राइट। तो वहां कहां जाना है कि जहां ये अधिकार का उल्लंघन होता है, धर्म और जीवन में घर्षण होता है, ऐसे एरिया में जाके आप पूछ सकते हो और आपको बहुत अच्छा इफेक्टिव क्या मिलेगा, आपको एक टॉपिक मिलेगा, राइट। तो ये 4 टॉपिक आपने बताए, इसमें से ये 4 टॉपिक जो मैंने लिखे ना, इसमें से ही आपको 7 और 8 स्टूडेंट्स का LLM का पूरा वाइवा तक, मतलब रिपोर्ट राइटिंग तक हो सकता है विथ ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन, जो सिस्टमेटिक वे जो मैंने बोला है वो हो सकता है। आई होप कि ये जो मैंने बताया ना वो आप अपने हिसाब से, कोई क्रिमिनल में है तो क्राइम केस हुआ है, फॉर एग्जांपल जुवेनाइल, राइट, तो उसका जो लॉ है, कितने कितने बच्चे हैं यहाँ जो उसको वहां वो अफेक्टेड है, राइट, वो आप जान सकते हो। वो स्टैटिस्टिक्स प्राइमरी डेटा आप निकाल सकते हो और उसका स्टडी अच्छी तरह से कर सकते हो, राइट। उसमें एरिया वाइज स्टडी कर सकते हो, आपके कौन से एरिया में ज्यादा है, और कंपैरिजन कर सकते हो कि पुअर जहाँ मतलब पुअर फैमिली बैकग्राउंड है, इसमें ये केसेस बढ़ते हैं या घटते हैं, तो क्या इफेक्ट है फैमिली इनकम पे, और ये जो लॉ का ब्रेक होना, और वो क्या है जो आप टेक्निकली आप ज्यादा समझते होंगे तो इसमें क्या है, राइट, वो समझ सकते हो। और इस एक्ट में किसी को मतलब कुछ सजा हुई है, राइट, वो सजा होने के बाद उसकी फैमिली की स्थिति क्या है, राइट, व्हाट दे आर थिंकिंग। तो जिसका बच्चे का ये हुआ है तो उसको हम उसके फैमिली को जाके मिलते हैं कि उनकी मनस्थिति क्या है, फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है, और उनका मानना क्या है एक्चुअली कि ये सही हुआ नहीं हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो दैट यू कैन डू, राइट। तो एक ही है ये एक्ट, और हमने अलग अलग इसमें से रिसर्च के टॉपिक निकाले। वैसे हमारे आजू बाजू बहुत सारे ऐसे हैं, राइट। मैं अगर बाहर निकलता हूं और एक्सीडेंट होता है तो मुझे पता है, मतलब मुझे रिसर्च का एक आइडिया आ जाएगा कि भाई ये क्यों, मतलब एक्सीडेंट्स हुआ तो क्यों हुआ, वो रीजंस में मतलब जानना चाहूंगा, कितने एक्सीडेंट्स हुए, कौन से एक्सीडेंट्स ज्यादा हुए, एक्सीडेंट होने के बाद
कौन सा वो कोर्ट में या वो उसका मतलब एफआईआर दर्ज करवाई, कितनी एफआईआर दर्ज करवाई, राइट। ये सब मैं मिक्स करके अपना एक ट्रैफिक का रूल्स है उस पे मैं कर सकता हूँ, राइट। तो अपने अपने हिसाब से आपका भी देख लो, कॉन्स्टिट्यूशन वाले उनके जो लॉज हैं उनका जो न्यूज आइटम है देख लो, और बाद में सोचो कि इसमें से हमारा टॉपिक कैसे निकले, राइट। तो ये है ना रॉ आइडिया है, राइट। ये रिसर्च टॉपिक नहीं बना है, राइट। ये रिसर्च टॉपिक नहीं बना है, लेकिन रॉ आइडिया है, एक आइडिया आ गया कि इसमें हम रिसर्च कर सकते हैं। तो अपने अपने जो तीन आपने टॉपिक जो और टाइटल निकाले हैं, राइट, जहां लीगल आता नहीं है वो निकाल देना है, राइट। तो वो निकाले हैं, इसमें आप सोचो कि इसमें कैसे रिसर्च में कर सकता हूं, राइट। कुछ भी एग्जांपल मतलब आपने अगर फिक्स कर दिया है कि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, राइट, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको कैसे करना है, तो वो मैं एग्जांपल दे दे के मैं समझा सकता हूं कि आप ऐसा करो, यहाँ करो, ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। तो और मतलब आपका जो टाइटल, जो रिसर्च का टाइटल भी बन जाए, राइट, तो वो हो सकता है। तो ये खत्म नहीं हुआ, राइट, ये खत्म नहीं हुआ। तो लेट मी टेक यू वन मोर। ये मेरी नोट पैड दिख रही है सबको? नोट पैड दिख रही है? यस सर। ओके, चलो। तो यहाँ मैं कुछ लिखने जा रहा हूं और मैं एक एग्जांपल यही लेता हूं कि पार्लियामेंट पे अटैक, राइट, दिस इज द न्यूज आइटम, अटैक, पार्लियामेंट पे अटैक। तो इस पे मैं क्या रिसर्च कर सकता हूं, राइट। तो ए स्टडी ऑन, अभी जो है ना मेरा वो सोच था, राइट, मेरे सब क्वेश्चन थे अभी तक जो मैंने डिस्कस किया वो मेरी सोच थी, मेरा क्वेश्चन था, लेकिन एक्चुअली मैं क्या करना चाहता हूं। तो रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी वेरी क्लियर। तो मैं ये मतलब मुझे थोड़ा नॉलेज है इसलिए मैं लिख रहा हूं, ए स्टडी ऑन अटैक ऑन पार्लियामेंट, right, a study on attack on parliament in different countries and identifying reasons thereof। बराबर, कहाँ डिफरेंट कंट्रीज में कितने कितने अटैक हुए। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये क्लियर है, राइट, ये ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि अटैक कितने हुए। तो आई कैन टेक एंड आइडेंटिफाई द रीजंस देयरऑफ, क्यों हुए, राइट। तो ये इसमें मैं क्या कर सकता हूं, ये स्टडी एक टाइटल है, राइट। तो इसमें दो स्टूडेंट्स इसमें कर सकते हैं, कैसे। तो मैं यूके और डेवलप कंट्री ले सकता हूं, डेवलप्ड कंट्री, राइट, डेवलप कंट्री, और कोई अंडर डेवलप कंट्री भी ले सकता है। और आप कर सकते हो डेवलप कंट्री वर्सेस अंडर डेवलप कंट्री भी कर सकते हो। और यू कैन टेक एशिया एंड एशिया वर्सेस अदर कॉन्टिनेंट्स, आप कर सकते हो, राइट। अगर बहुत ज्यादा अटैक वाला है तो कर सकते हो, राइट। तो एशिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और मतलब अमेरिका, एशिया वर्सेस अमेरिका, तो एशियन कंट्रीज है और अमेरिकन जो कंट्रीज है वहां क्या हुआ, कैसे हुआ, तो ये मेरा स्टडी हो सकता है। और रीजंस यहाँ क्या है, वहां क्या है, और मुझे और आइडेंटिफाई करना है ये रीजंस है। तो अभी मुझे एज ए रिसर्चर सोचना पड़ेगा कि ये रीजन है, तो व्हाट आर द रेमेडीज, क्यों ये हुआ, लॉ में कुछ कमी है तो कौन सा लॉ हम ये करें या क्या क्या इफेक्ट दे ताकि ऐसे अटैक न हो। तो ये मेरा हो गया पार्लियामेंट पे अटैक वाला, राइट। पार्लियामेंट पे अटैक पे मैं दूसरा टॉपिक बना सकता हूं कि ए स्टडी ऑन मेजरमेंट ऑफ law and order, measurement of perception of law and order after a special event, special event न लिखूं तो after attack on पार्लियामेंट, राइट। तो कैन आई राइट दिस कि क्या क्या परसेप्शन हुआ भाई,
मतलब ये अटैक हुआ तो यूएस में जाके मैं मतलब सबको पूछूंगा रैंडमली नहीं, लेकिन कुछ एरिया फिक्स करूंगा और पूछूंगा लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आप क्या सोचते हो आफ्टर, मतलब ये अटैक हुआ तो इज इट सोज दैट के ये अमेरिका में बहुत सारा कंफ्यूज वो लॉ एंड ऑर्डर की बहुत मतलब है ही नहीं कुछ, ऐसा कुछ सोच रहे हो तो उसके स्टडी में कर सकता हूं। तो देखो आपने एक टॉपिक दिया, इस पे से मैंने ये 2 टॉपिक निकाले। वैसे आप क्या करेंगे, आपका अपना अपना सोच रखेंगे, अपना अपना सोच रखेंगे। तो मैंने पहले क्या किया, अटैक ऑन पार्लियामेंट एंड आइडेंटिफाइंग द रीजन, दैट वाज द क्वेश्चन। तो अभी ये एकदम क्लियर है, राइट। तो इसमें क्या है, ये स्टडी है तो मुझे स्टडी करना है। क्या करना है, अटैक ऑन पार्लियामेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। अटैक ऑन पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट पे अटैक हुई वैसी ही मुझे घटना सब और इंसिडेंट्स वो ही लेना है, राइट। तो मुझे मेरे ऑब्जेक्टिव्स भी एकदम क्लियर होते जाते हैं, राइट। इन अ डिफरेंट कंट्रीज में डिफाइन करूंगा मेरी रिसर्च मेथोडोलॉजी में। मैं एशिया की बात कर रहा हूं या मलेशिया की बात कर रहा हूं, जो भी है, राइट। एंड आइडेंटिफाइंग द रीजंस, तो रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, राइट, वो मुझे करना है। एंड यहां मैं लिखता हूं स्पेशल रेफरेंस टू यूएसए। अगर मेरी कंट्री होती है तो इन इंडिया में लिख देता हूं, तो इन इंडिया या इन गुजरात लिख देता हूं तो इन गुजरात हो जाएगा। इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट और आनंद डिस्ट्रिक्ट तो आनंद डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो मेरे सोच के हिसाब से और मेरे मतलब आइडिया के हिसाब से मैं अपना एरिया यहाँ फिक्स करूंगा। अगर मैं अगर यहाँ पार्लियामेंट में अटैक हुआ फॉर एग्जांपल सेम डे पे, राइट, तो मैं गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो पीपल है उनका मनोबल टूटा है या नहीं टूटा है तो वो मैं ही स्टडी करूंगा, राइट। और वो क्या रीजन है वो मैं फाइंड करूंगा, राइट। नो नॉइज प्लीज। प्लीज रिस्ट्रिक्ट सब। ओके, तो आपको समझ में आ गया ये। तो ऐसे लिखते हैं, हमारा जो प्रॉब्लम है ना वो एकदम क्लियर होना चाहिए। ए स्टडी ऑन मेजरमेंट ऑफ परसेप्शंस अबाउट लॉ एंड ऑर्डर। तो मेजरमेंट ऑफ परसेप्शंस करना है कि परसेप्टिव स्टडी क्या है, किस पे परसेप्शंस है, अबाउट लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है। तो कैसे मेजर करना है, क्यों करना है, किसको पूछना है, वो बाद का टॉपिक है, राइट। इन आफ्टर स्पेशलाइज इवेंट और आफ्टर अटैक ऑन पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ तो बाद में क्या क्या सिचुएशन है। वैसे ही आप सब लोग अपना अपना जो टॉपिक है ना वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड ग्रैबिंग वाला है, राइट। तो लैंड ग्रैबिंग में फॉर एग्जांपल लैंड ग्रैबिंग, और ये जो मैं सिखा रहा हूं ना कोई बुक्स में नहीं मिलेगा, राइट। तो लैंड ग्रैबिंग पे हम क्या क्या रिसर्च कर सकते हैं, राइट। तो आप एक कर सकते हो कि लैंड ग्रैबिंग ए स्टडी ऑन और ए स्टडी ऑन लैंड ग्रैबिंग इन selected cities of गुजरात, राइट। तो ये मेरा टॉपिक है, ए स्टडी ऑफ लैंड ग्रैबिंग इन सिलेक्टेड सिटीज। लैंड ग्रैबिंग कहाँ कहाँ हुआ है, क्या क्या हुआ है, कौन से, राइट। तो वो मैं स्टडी करूंगा। और सिलेक्टेड सिटी मतलब अहमदाबाद, वो टॉप 5 और टॉप 10 सिटीज में लूंगा और उसकी कंपैरेटिव स्टडी में करूंगा। तो ये स्टडी ऑफ लैंड ग्रैबिंग, राइट। और आप कर सकते हो कि ए स्टडी ऑन परसेप्शन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ लैंड ग्रैबिंग LG लिख दो, लैंड ग्रैबिंग एक्ट एमोंग आप अलग अलग कर सकते हो। एमोंग एडवोकेट्स भी कर सकते हो, एमोंग कॉमन पीपल भी कर सकते हो, एमोंग
बिजनेसमैन भी कर सकते हो, राइट, अलग अलग। और नहीं रखना है तो अमॉन्ग पीपल कर देते हो, तो एडवोकेट भी पूछ सकते हो, जो लॉ जानते हैं, जो लॉ नहीं जानते हैं, जो बिजनेसमैन में है वो, तो आप ये कर सकते हो। तो इसमें क्या करना है, आपको परसेप्टिव स्टडी करना है, परसेप्शन पूछना है, उसकी इफेक्ट क्या हो सकती है, तो आपको क्या क्या इफेक्ट हो सकती है वो फाइंड करना है। तो आनंद या कहीं भी सॉरी एडवोकेट का पीछे, मतलब एडवोकेट हो तो एडवोकेट या कहीं भी, वो अपनी क्रिएटिविटी और अपनी इंपॉर्टेंस है, तो वो करके आप क्या करेंगे, अपना 3 टॉपिक ऐसे फाइनलाइज करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि 3 टॉपिक इसलिए बोलता हूं कि आपने एक टॉपिक ले लिया मान लो, और वो टॉपिक में थोड़े अटक गए, क्योंकि सब जगह मिलेगा ऐसा नहीं है, राइट। ये कैसे फाइंड करना है वो सब अभी आगे तो बहुत आएगा। ये तो पहले प्रैक्टिकल ले लिए, अभी उसका थ्योरी पार्ट पे प्रैक्टिकल हम लाइट करेंगे, राइट। तो मतलब 3 टॉपिक पे सोचना जरूरी है, और आगे क्या करना है वो हम यहाँ सीखने जा रहे हैं, राइट। तो थैंक्स ऑल फॉर शेयरिंग दिस। ये 4 पॉइंट जो हमारा मतलब अभी सब डिस्कशन इस पे होगा, राइट। तो व्हाट इज रिसर्च प्रॉब्लम, राइट। तो प्रॉब्लम वो नहीं है कि सर दुख रहा है, प्रॉब्लम वो नहीं है कि मतलब हम चल नहीं सकते, वो प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहे, हम रिसर्च प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, राइट। तो ए प्रॉब्लम इज दैट समवन वुड लाइक टू इन्वेस्टिगेट। तो प्रॉब्लम वो है कि जहां इज ए स्कोप फॉर इन्वेस्टिगेशंस, राइट, इन्वेस्टिगेशंस। It is considered as a situation that needs to change or address। कोई सिचुएशन ऐसी हुई है वहां जब हम चेंज लाना चाहते हैं और उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, राइट। प्लीज म्यूट योर माइक। गुरुराज प्लीज म्यूट करिए। Yes, ma'am. He has been muted. So it is considered a situation that needs to change or address। कुछ चेंज करना है, राइट। अटैक नहीं होना चाहिए, राइट, अटैक नहीं होना चाहिए। लैंड ग्रैबिंग का इफेक्टिव पालन होना चाहिए, जिसकी लैंड है उसको ही वो मालिक को ही मिलनी चाहिए, कागज जैसा नहीं होना चाहिए, फिल्म जो कागज होती है, राइट। एंड इट इज एड्रेस्ड, मतलब क्या है सिचुएशंस, वो नैरेट करने के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, वो इट्स अ पार्ट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। आज सुबह की बात बताता हूँ कि न्यूज़पेपर आया हमारे घर, और मेरा छोटा लड़का है वो 11th क्लास में है, राइट। तो वो टचुकड़ी जाखा आती है ना, मतलब स्मॉल एडवर्टाइजमेंट, वहाँ लिखा था कि पर मंथ आप 16,000 से 46,000 तक कमाओ, राइट। वो ऐसा मुझे पूछा कि पापा ये मतलब कॉलिंग का ही है, राइट, तो मैं कर सकता हूँ क्या, राइट। तो मैं आपके सोच रहा था कि आपको क्या क्या सीक्वेंस में बना रहा था कि इस सेशन में मैं क्या क्या बोलूंगा, क्या क्या हाईलाइट करूंगा। तो इसमें मैंने ये क्वेश्चन मुझे पूछा, राइट, टचुकड़ी जाख, राइट। तो हाँ, जो गुजराती जानते हैं उसको तो पता है, टचुकड़ी जार खबर सूच है, राइट। तो उसने मुझे पूछा कि पापा मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं, और मैंने कहा कि तू कर सकता है, क्या है ऐसा, मतलब तू फोन कर उसको, क्या है, राइट। और बाद में बोला कि मुझे करना क्या होगा, और वो बोला कि नहीं ये फिक्स सैलरी है, राइट। तो मेरा जो ये कहने का मतलब ये है कि मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया वो प्रॉब्लम को, राइट। वो आप ले सकते हो, कोई भी आप में से ले सकते हो, राइट। तो उसने पूछा कि इसमें तो फिक्स है, राइट, तो मैं जाके थोड़ा थोड़ा कॉल कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा। तो मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं होता है, वहां जाओ तो वो तू नहीं फंसाएगा उसको, वो तुझे फंसाएंगे। वहां से मेरा एक क्लिक हुआ कि भाई ऐसे जो टचुकड़ी जाखा आती है ना, वहां वो कुछ फिक्स अमाउंट रखते हैं, राइट, कि ताकि लोग जो है ना अप्लाई करें। स्पेशली गांव के लोग आते हैं और बहुत सारा काम करवाते हैं और पैसा देते हैं नहीं देते हैं, उसी जगह ना बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। क्योंकि अगर आप सरकारी जो सर्विस है इसमें 15-16 हजार की नौकरी के लिए तो एक पोस्ट पे 15-20 लोग जाएंगे, राइट, और यहाँ नहीं जाते, उसका रीजन है कुछ ना कुछ होगा, राइट। तो ऐसी एडवर्टाइजमेंट देकर वो क्या कर रहे हैं, वेदर दे आर जस्टिफाइंग दैट एडवर्टाइजमेंट और नॉट, राइट। तो वो आप रिसर्च ले सकते हो कि ये लोग की मॉडस ऑपरेंडी क्या है, वो क्या करते हैं। तो आप सिलेक्टेड 5 और 6
ऐसे टचुकड़ी झांक लेकर जा सकते हो और उसको मतलब एज ए कस्टमर जा सकते हो ऑब्जर्वेशन मेथड में, राइट। आप भले वकील हो और मुझे मतलब ये जॉब करनी है और आप ट्राई टू डू फॉर 2-3 डेज, राइट। क्या करते हैं, क्या प्रेशर देते हैं, कितना ट्रेनिंग देते हैं और वेदर दे आर फॉलोइंग द लॉ और नॉट, राइट। वो इन्वेस्टिगेशन करके आप अपना रिसर्च कर सकते हो। मतलब वो ट्रैप करते हैं क्या, वो मतलब जब अगर कोई ट्रैप करता है तो वो कायदा के विरुद्ध होगा, राइट। तो वो लेकर उसका मतलब क्या क्या कर रहे हैं ये लोग, राइट। तो दैट यू कम आउट विद द वेरी गुड क्वालिटेटिव आइडिया, राइट। क्वालिटेटिव रिसर्च हो जाएगा। वह इसमें आंकड़े नहीं होंगे, आपका इंटरव्यू, आपका ऑब्जर्वेशंस, वो देख के आप अपना रिसर्च डेवलप कर सकते हो कि ये कर रहा है। बाद में आपका मतलब कंक्लूजन क्या होगा, वेदर दिस शुड बी अलाउड और नॉट, ये अलाउड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर सही है तो ठीक है, सही नहीं है तो उसको रोकना सबकी वो फर्ज बनती है, राइट। सही नहीं है तो सबका रोकना फर्ज बनता है, राइट। तो इसलिए ये भी एक आइडिया हो गया, ये भी एक हम कर सकते हैं और उसके लिए हमारा मतलब बैकअप और थोड़ा सिस्टमेटिक जाए तो इस पे भी रिसर्च हो सकता है, राइट। तो ऐसे ऐसे रिसर्च प्रॉब्लम आप अपने हिसाब से फाइंड कर सकते हैं। मतलब आप जहां भी देखो ना वहां रिसर्च आइडिया है, आप अगर अच्छी तरह से उसको सोचो, राइट। बट कुछ कितने डू एंड डोंट्स भी होते हैं जो हम देखने जाने वाले हैं, ओके। तो ये रिसर्च प्रॉब्लम है जहां हमको चेंज चाहिए या कुछ हम एड्रेस कर रहे हैं। तो ये टचुकड़ी जाख वाला में हम एड्रेस करेंगे कि क्या क्या हो रहा है, ताकि अपना रिसर्च होए तो बाद में सबको पता चले कि ऐसे मतलब इसमें लड़कियों को नहीं जाना चाहिए या लड़कों को जाना चाहिए, तो इतने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, इतना प्रेशर देते हैं। तो बहुत सारे लोग वहां क्या होंगे, बच जाएंगे, आपके रिसर्च का जो स्टडी करके वो बच जाएंगे, राइट। सो ये जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसमें क्या क्या होता है, तो एरियाज ऑफ कंसर्न होता है, राइट। कुछ एरिया ऑफ कंसर्न, फॉर एग्जाम्पल ये जाहिर खबर वाला था, वो एरिया ऑफ कंसर्न है मेरा। क्योंकि हर रोज मुझे ऐसी 50 एडवर्टाइजमेंट देखी जा रही है, मैं देखता हूं, राइट। तो एरिया ऑफ कंसर्न है, आपका भी सबका एरिया ऑफ कंसर्न है, राइट। कंडीशंस टू बी इम्प्रूव, कुछ इम्प्रूव करना है, राइट। तो ये एडवर्टाइजमेंट इम्प्रूव कर रही है, ये पार्लियामेंट पे अटैक न हो ऐसा इम्प्रूव करना है, राइट। कुछ डिफिकल्टीज आती है, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट अगर वो रोक लगा रही है या किसी खर्चे पे रोक लगा रही है तो बहुत सारे पब्लिक एक्सपेंडिचर में प्रॉब्लम होता है, राइट। तो वो क्यों ऐसा न करे या करे तो कैसा, और ऑल्टरनेटिव क्या है। तो ये डिफिकल्टीज जो हमारा जो जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट्स देते हैं, तो वो जजमेंट्स गवर्नमेंट के खिलाफ जाए तो कौन सा ऑल्टरनेट वेज है, तो दैट यू कैन फाइंड आउट। और कोई आपके मन में क्वेश्चंस हो तो उसके आंसर जानने के लिए हम